Hello, my dear student. Welcome to the subject name is environmental science. Today we are going to discuss about new topic of unit 6, that is consumerism and waste product. So let's begin with the reference part. Today PPT has been made from the following link or the sources. You can go through these books and PDF ebooks for the more detailed information. Now talking about the today topic, that is consumerism and the waste product. Firstly, we have to understand what do you mean by the consumerism. As you know that consumerism is basically a word which is a basically combination of two words, consumer plus merism. It means that consumption of the resources by the people or by the customer. When the consumption of the resources by the people or the consumer is happen, it is known as consumerism. तो जब भी लोग पीपल या कस्टमर किसी प्रोडक्ट को कंजम्पशन शुरू कर देते हैं, कंजम्पशन मींस यूज शुरू कर देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंज्यूमरिज्म. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वेस्ट प्रोडक्ट? वेस्ट प्रोडक्ट इट मींस कंज्यूमरिज्म में जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को यूज करता है, कंज्यूम करता है, कंजम्पशन करता है, देन आफ्टर इट्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम यूसेज the consumer throw it and after consuming all the product, or you can say we can say any material that is unused and rejected as a worthless or unwanted. Any product that is worthless and unwanted after you using and after the consumption by the consumer, that product is basically waste product. So as you know that uh, while the early human society used to consume much less resources previously, before the industrialization era, the human society used and consumed the um, as comparison to today, they are using very less amount of resources, their consumption are very less, and consumerism has shown exponential growth. It means that previously before the industrialization era से पहले maximum population जो थी, consumption था बहुत कम था. तो consumerism basically क्या था? Consumption of resources by the people before the industrial era very less. But as the consumerism process has shown a exponential process, or its growth increase in a very a tremendous way. It has been related to the both increase in the population size as well as increasing in our demand. So what is a both the consumerism process is increased with the population size as well as increase in the demand due to the change in the lifestyle. So due to the lifestyle changes and the buying habit and demand of the people changes, population increase, so the consumerism process also increases. Mean consumption of the resources or consumption of the product in or increase by the people. तो लोगों ने कंज्यूमर ने किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन और शुरू कर दिया. Earlier, we used to live a very simple life and used to have a very fewer want and fewer demand. In the modern society or in today's society, our need has multiplied, and so consumerism of the resources has also multiplied. So the consumerism जो process है, consumption of the resources or the consumption of the product by the consumer also increases. It means consumerism जो process है वो increase हुआ. तो consumerism basically क्या है? जब कोई भी consumer या people किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंज्यूमरिज्म. तो आज की सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो आज लोगों की डिमांड ज्यादा है, लोगों की नीड ज्यादा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, एंड एन नंबर ऑफ डिमांड की वजह से क्या होता है, कंज्यूमरिज्म जो प्रोसेस है वो इंक्रीज कर रहा है. मीन्स कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द पीपल और बाय द कस्टमर इज इंक्रीज. आवर पॉपुलेशन was less than 1 million for the thousand of year ago, and since we evolved on this earth. But today we have crossed the 7 billion mark. As you know that we are the second populated country in our world, and we are likely to be reach 11 billion by the 2045 as per the World Bank estimate. And we can see that how the changing population trend influence the consumerism of the natural resources, and how the population influence the consumerism, and how it influence the generation of wastage. They are the two type of condition of a population and consumerism
एग्जिस्ट। सो टू काइंड ऑफ कंडीशन को हमें समझना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमरिज्म और पॉपुलेशन आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं और दोनों की वजह से वेस्टेज या वेस्ट प्रोडक्ट कैसे इंक्रीज करता है। तो लेट्स सी, दे आर द बेसिकली टू टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन एंड कंज्यूमरिज्म। फर्स्ट इज पीपल ओवर पॉपुलेशन। तो दो टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। पीपल ओवर पॉपुलेशन, इट मीन्स इट अकर व्हेन देयर आर द मोर पीपल देन अवेलेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। व्हेन वी हैव अ मोर पीपल एंड वी हैव अ लिटिल और the demand of the people or the people demand is more than the supply of the goods and the water of the and availability supply of the water, as well as the other important resources in our area. If the resources are limited and people population are more, then it is basically people over population condition. And excessive population pressure causes the degradation of the limited resources. It means ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा, जितनी भी इन्वायरमेंटल की रिसोर्सेज है हमारे पास वो धीरे धीरे कंज्यूम होने लग जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ज़्यादा पॉपुलेशन से प्रेशर आ जाता है इन्वायरमेंट, जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर। एंड देयर आर ऑब्सोल्युटली अ कंडीशन क्रिएटेड, दैट इज अ पॉवर्टी, अंडर नरिशमेंट एंड प्री मैच्योर डेथ। तो गरीबी, पॉवर्टी, अंडर नरिशमेंट काइंड ऑफ कंडीशन क्रिएट हो जाएगी पीपल ओवर पॉपुलेशन से। लोगों की जो डिमांड है, वो ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है। एंड दिस अकर इन अ लेस डेवलप कंट्री। तो मोस्टली जो भी लेस डेवलप कंट्रीज हैं, जिनको LDC बोला जाता है, LDC मीन्स लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है, उनमें बेसिकली पीपल ओवर पॉपुलेशन कंडीशन होती है। एंड हेयर ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एडिक्वेट रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल फॉर देम, सो देयर आर द लेस कैपिटल कंजम्पशन। एंड द कंजम्पशन और द कंज्यूमरिज्म क्या होता है ऐसी कंट्री में, बहुत ही कम होता है। एंड ओवरऑल द कंजम्पशन इज वेरी हाई। तो ओवरऑल कंजम्पशन ज़्यादा होता है मगर लेस पर कैपिटा कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेस्टेज जो होता है वो भी कम होता है, क्योंकि कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे प्रोडक्ट को। बट द अदर कंडीशन इज basically consumption over population. It means it occur when the more developed countries, this is occur in a more developed country. Here the population size is smaller while the resources in abundance, and due to the luxurious lifestyle per capita consumption of the resources very high. हेयर द कंजम्पशन क्या होता है, लोगों का बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन से ज़्यादा कंजम्पशन है ड्यू टू लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से क्या है, रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन है वो क्या है, ज़्यादा है। एंड मोर कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड मोर द वेस्टेज जनरेट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ज़्यादा कंजम्पशन अगर किसी चीज़ का होता है, हम ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेगा, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मोर कंजम्पशन। मोर कंज्यूमरिज्म आएगा तो मोर कंज्यूमरिज्म से क्या होगा, वो मोस्ट वेस्ट जनरेट होगा, मीन्स वेस्ट जनरेट ज़्यादा होगा, क्योंकि हम कुछ समय बाद उस प्रोडक्ट को जब हम थ्रो अवे कर देंगे तो वो वेस्ट अनयूजफुल प्रोडक्ट हो जाएगा और ऐसे में वेस्टेज क्रिएट हो जाएगा। एंड द वेस्ट डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, और वेस्टेज जब जनरेट होता है तो ये क्या कर देता है, सॉलिड वेस्ट क्रिएट हो जाता है, और इससे क्या होता है, ग्रेटर डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेड होने लग जाता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, खराब होने लग जाता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन टाइप ऑफ कंडीशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ कॉन्सेप्ट था मॉल एंड रीच, जॉन एंड हॉडलन ने एक फॉर्मेट किया था कि ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम कैसे देख सकते हैं कि कंजम्पशन से ओवरऑल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पे क्या फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट का जो फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल पर कैपिटा इनटू पर कैपिटा यूज ऑफ रिसोर्सेज इनटू वेस्टेज जनरेट पर यूनिट ऑफ रिसोर्सेज। तो इन्वायरमेंट जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसका मल्टीप्लाई जितना हम कंज्यूम करते हैं रिसोर्सेज को पर कैपिटा, उतना ही ज़्यादा होता है हमारा वेस्टेज। इन तीनों का जो मल्टीपल होता है दैट शोज द ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द कंजम्पशन। तो ओवरऑल इम्पैक्ट अगर आपको जज करना है तो ये आपको यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। नाउ टॉकिंग अबाउट द टुडे टॉपिक दैट इज अ कंज्यूमरिज्म। तो हमने देख लिया कंज्यूमेशन बेसिकली क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द पीपल। एंड हेयर आप मेंशन वेस्ट प्रोडक्ट। तो आपको ये भी पता चल गया कि कंजम्पशन जो होता है वो जितनी भी मोर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है, इसका मीन्स कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है, और वेस्ट प्रोडक्ट का कंजम्पशन जब ज़्यादा होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट होगा। तो ये टॉपिक एक ओवरऑल यही बताता है आपको। कंज्यूमर इज बेसिकली रिलेटेड टू द कांस्टेंट परचेजिंग ऑफ गुड्स विद लिटिल अटेंशन टू योर नीड्स। तो जब हम लगातार कांस्टेंट परचेज करते हैं न्यू गुड्स को विदाउट कंसिडरिंग
aggressive need of our true needs or durability and product origin or the environmental consequences of their manufacture and disposal. प्रोडक्ट की इतनी नीड नहीं होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को नहीं देखते हैं, प्रोडक्ट की हम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखते हैं कि how the product can harm the environment and how their consequences of their manufacturing and disposal को हम ध्यान में ना रखकर कोई चीज़ को constant purchase करते हैं. तो दैट इज बेसिकली कंज्यूमरिज्म. एंड स्पेशली इन द डेवलप कंट्री, जो डेवलप कंट्रीज है, मोर डेवलप कंट्रीज है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है. एंड पॉल्यूशन होने के कारण कहते हैं जो लैंडफिल है, जो वेस्टेज मैनेजमेंट है, लैंडफिल पर्टिकुलर एरिया में वेस्ट को फेंक दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है एट स्पेशली ऐसी कंडीशन में. एंड इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ द सॉलिड और वेस्टेज दैट इज जनरेटेड बाय द कंज्यूमर ऑर्डिनरी सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड इज नॉट अ सीरियस इन्वायरमेंटल इशू. तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द कंज्यूमरिज्म प्रोसेस, और इससे कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी बन गई है. मोस्टली जो कंपनी है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट सेल कर रही है विदाउट कंसिडरिंग द इन्वायरमेंटल, एंड इट क्रिएट अ मोर वेस्टेज. और मोर वेस्टेज जब क्रिएट होगा तो मोस्ट प्लास्टिक क्रिएट हो जाएंगे, मोर ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, वो भी सीरियस टाइप की. एंड मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन कंजम्पशन साइकिल. तो मैक्सिमम जो हमारी जितनी भी मोस्ट कंजम्पशन साइकिल विच प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें हमारी मैक्सिमम जो भी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन कंजम्पशन साइकिल, बेसिकली उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेस्टेज क्रिएट होता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट. तो जो वेस्ट हम बात कर रहे हैं, वेस्ट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में वेस्ट क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट. With the advent of the industrialization and civilization process, the highly complex technology and process for the production of goods, and it increased the problems of inadequate waste disposal. तो ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होने के कारण प्रोडक्ट बहुत ही हाईली मॉडिफाइड तरीके से बनता है, एंड इट ऑल्सो क्रिएट अ इनएडिक्वेट डिस्पोजल. तो उस प्रोडक्ट का डिस्पोजल पे ध्यान नहीं दिया जाता, एंड वी आर फोकसिंग ऑन मेकिंग अ प्रोडक्ट which is very technical high, but we are not considering how we can dispose that product while making. तो हम इसको ध्यान नहीं रखते हैं कि ये बनाते वक्त हमें इस प्रोडक्ट की डिस्पोजल पे ध्यान देना चाहिए. With the rapid increase in the population, the amount of wastage in terms of quantity and quality also increase. Waste management pressure increase. तो जैसे जैसे population बढ़ रही है, amount of wastage also increase. Wastage in terms of quality and as well as quantity. वेस्टेज का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी बढ़ रही है. मीन्स वेस्टेज बहुत ज़्यादा वैरायटी में आ रहा है, और इस वेस्टेज से वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन द रिसेंट एरिया ईयर्स. एंड अब मैक्सिमम क्या है कि अब हेल्थ विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द डेंजर इंडस्ट्रियल एफिलेंट. तो ये वेस्टेज है, ये बेसिकली इंडस्ट्री से अलग अलग अनहेल्दी गैसेस, अनहेल्दी वेस्टेज जो है जो इन्वायरमेंट में हमें मिल जाता है. तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल वजह से हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. एंड देयर फॉर द री यूज ऑफ द वेस्ट goods and waste utilization should also become a part of production and consumption cycle. तो बेसिकली हमें जब भी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइकिल के बीच में वेस्ट यूटिलाइजेशन को हमें एक इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. मीन्स वेन एवर द इंडस्ट्री मेक एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टू कंजम्पशन साइकिल, जब तक प्रोडक्शन होता है और टिल द कंज्यूमर तक पहुंचता है, इस बीच में वी शुड हैव टू रीयूज द प्रोडक्ट, एंड वी हैव टू टेक we have to take some the part of wastage utilization step in order to remove the waste kind of material due to the heavy usage of the product. तो ये हमें वेस्ट यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट इज ऑल्सो हायर देन इन अ डेवलप कंट्री. तो पर कैपिटा वेस्टेज डोमेस्टिक वेस्ट से जितने भी आता है, घर में जितने भी सामान वगैरह होते हैं जिनका वेस्टेज होता है, उस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा वेस्टेज डेवलप कंट्री में होता है जितना एज कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्री. क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादातर वो प्रोडक्ट को यूज़ करें, लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो ज़्यादा कंजम्पशन आता है. नाउ द लास्ट क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट मटेरियल आपको पता ही क्रेडिट हो जाते हैं इन द अर्बन इंडस्ट्रीज कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक. तो मैक्सिमम जितनी भी अर्बन एरियाज हैं दे आर यू कैन सी द प्लास्टिक, लेदर,
tin can, bottles, and n number of waste material. Even the pathological waste also come from the hospital. This also comes under the urban industrialization wastage, and this wastage is basically can be in form of solid, liquid and gas kind of waste. तो ये बेसिकली वेस्टेज हमारा कहाँ से आ रहा है? ये अर्बन जगह से आ रहा है, हॉस्पिटल में जितना भी कंजम्पशन हो रहा है पेशेंट के द्वारा या हॉस्पिटल में. एंड द डेड animals, agriculture waste and fertilizer, pesticide overuse, human activity, etc. and also रूरल कंसर्न. तो रूरल एरिया में वेस्टेज कहाँ से आ रहा है? फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, एग्रीकल्चर वेस्टेज से क्रिएट हो रहा है, डेड एनिमल से क्रिएट हो रहा है. तो ये तो अर्बन एरिया में क्रिएट हो रहा है, और अर्बन एरिया में क्रिएट होता है. एंड रूरल एरिया में कहाँ से क्रिएट हो रहा है? एग्रीकल्चर वेस्ट एंड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से क्रिएट हो रहा है. So we have to make our attitude we have to understand that due to the over exploitation of the, instead of the over exploitation of the resources, we have to make our attitude to decrease the disaster effect of the on the environment. तो हमें अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने ना, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए. वी शुड हैव टू फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. तो ये रहा बात. अब नाउ करते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द कंज्यूमरिज्म. कंज्यूमरिज्म मींस जब कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो कंज्यूमरिज्म हो रहा है. मींस दे आर यूजिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट. बाय यूजिंग मोर एंड प्रोडक्ट, मोर एंड मोर वेस्ट जनरेटेड. एंड मोस्ट when the more and more waste generated, then it means environment pollution also increases. So today many product produced are the luxurious and non degradable kind of, and it this kind of नॉट डिग्रेडेबल मीन्स जिसको बहुत लंबा समय लग जाता है डिग्रेड करने में, मीन्स टूटने में या उसको ब्रेक डाउन करने में. तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते. ऐसे प्रोडक्ट को डिकम्पोज करने में, उसको मेल्ट करने में काफी टाइम लग जाता है. तो दैट्स व्हाई दैट दिस wastage is become a problem, because this mostly the product which is comes under the wastage category are basically are of non degradable kind of. So that's why the consumers has become a very big problem. High rate of consumption lead to the pollution and waste product. So how to control the waste? Definitely there are one major step we can take. There is a 3R principle we should have to use while we control the waste, waste kind of management. So हमें reduce, reuse and recycle strategy को use करना पड़ेगा in order to manage or in order to waste management process. तो हमें waste management को करने के लिए waste को manage करने का तरीका क्या है? reduce करो, reuse करो, recycle करो. Very simple kind of process. reduce मतलब क्या होता है? reduce का मतलब ये होता है कि although some wastage is inevitable in society and we must minimize the generation of the wastage as sources by the minimal resources and do not use what we don't need. तो reduce का मतलब होता है we have to minimize our need, we have to we're not required to purchase any things or any product we don't need. तो हमें उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए जिसकी हमें एक्चुअल में जरूरत है. हमें देखना पड़ेगा हमें इसकी जरूरत है कि नहीं. तो हमें इसलिए मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए. तो इसीलिए क्या होगा? मिनिमम वेस्टेज जनरेशन होगा. दैट इज अ रिड्यूस टेक्निक्स. हाउ व्हाट इज अ रिड्यूस? द गोल ऑफ द एवरी सोसाइटी शुड बी रीच अ लो वेस्टेज एंड नो wastage society, definitely. And reduce residual wastage can be converted into reusable resources. reuse का मतलब जो भी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो उसको रीयूज करो. बार बार वंस टाइम यूज करने के बाद यू कैन यूज अगेन एंड अगेन. तो ये एक प्रोसेस है. और दस भी कहते हैं वेस्ट जो है डू नॉट रिमेड अ वेस्ट प्रोडक्ट एनी मोर बट इट बिकम अ यूजफुल प्रोडक्ट. तो हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रहता. वी कैन यूज इन अ यूजफुल मैनर बाय यूजिंग द किचन वेट वेस्ट टू मेक अ कंपोजिट. तो जितना भी किचन का जो डोमेस्टिक वेस्टेज होता है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है. बेसिकली ये बायोडिग्रेडेबल फाइन में था. तो वी कैन मेक इट एज अ कंपोजिट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. उसे खाद बनाने के लिए यूज़ करते थे. जैसे हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं. वी कैन यूज़ एज इट इज़ इन अ सीवेज इन अ बायोगैस प्लांट बना सकते हैं. इसी के लिए हम गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं टू मेक अ फ्यूल. तो इस तरह से हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमारे यूजफुल मैनर में प्रोडक्ट यूज़ को. वेस्टेड प्रोडक्ट हम वी कैन यूज़ इन अ यूजफुल मैनर. एंड वंस द इंडस्ट्री वेस्ट कुड बी वैल्यूबल रिसोर्सेज फॉर द अनदर इंडस्ट्री. तो जो भी एक इंडस्ट्री का जो वेस्टेज है वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एज अ यूजफुल प्रोडक्ट क्रिएट होना चाहिए. तो इन दैट वे वी कैन कंट्रोल द वेस्ट मैनेजमेंट. और दे आर द
how we can use the 3R principles. तो बेसिकली हम 3R प्रिंसिपल को इस तरह से यूज कर सकते हैं. तो वेन एवर यू यूज ओनली एज यू नीड एंड बी इट इन एनी रिसोर्सेज, वाटर एंड फूड एंड पेपर को आप तभी यूज कीजिए जितना आपको जरूरत है. नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे समथिंग एंड थिंक अबाउट वेटर इज रियली वेस्टेज. तो जब भी आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो उसको हमेशा सोचें कि क्या ये हम इसको रीयूज कर सकता हूँ, क्या मैं इसको दोबारा से रिसाइकिल कर सकता हूँ. अगर आपको लगता है रीयूज नहीं कर सकते तो आप उसको क्या कीजिए, उसको रिसाइकिल कीजिए. लाइक जो पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, इट कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल. तो कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको सबसे पहले आप थिंक ओवर कि ये प्रोडक्ट मुझे एक्चुअल में रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तभी उसको बाय करें. अगर आप बाय करने के बाद उसको थ्रो का अवे करने से पहले आप सोचें कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं. इफ यू कैन रीयूज, ओके, देन यू कैन रीयूज अगेन एंड अगेन टिल यू वांट टू रीयूज इट. और जब आप उसको लगता है ये यूज नहीं हो सकता, तब उसको रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं. तो इन दैट मैनर वी कैन ऑर्गेनाइज आवर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. और वेस्ट को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो डू दिस सम काइंड ऑफ लिटिल बिट एक्सरसाइज इन योर होम. लाइक यू कैन सेग्रीगेट योर वेस्टेज इन अ वेट एंड ड्राई गार्बेज. तो आप अपने वेस्टेज को दो फॉर्म में ड्राई कर सकते हैं, वेट एंड ड्राई फॉर्म में, सूखा एंड गीला. तो जितना भी वेट फेस होता है, गार्बेजेस होता है, लाइक किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसे आप कंपोजिट खाद बनाने में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में यूज कर सकते हैं. एज वेल एज इन द अमाउंट ऑफ ड्राई वेस्टेज को आप, जो भी ड्राई वेस्टेज आता है लाइक प्लास्टिक हो गया, पेपर्स हो गए, ये चीज होगी, तो इन सबको आप रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल की टेक्निक से यूज कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिसाइकलिंग प्रोसेस. तो यहाँ पर आप मोस्टली, आप एज यू नो दैट जो प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक को हम रिसाइकल, ऑल्दो द मोस्ट जो प्लास्टिक होता है रिसाइकल, कैन बी रिसाइकिल, can be recycled, but it take very long, and it take very it take up the energy, and which is very huge amount of energy they take while we degrade the plastic. So हमें ऐसे में क्या करना था, if we throw away this kind of a plastic in the environment, तो यहाँ पर स्टेरोफॉर्म एंड प्लास्टिक से निकलता है, जो कि बहुत टाइम लेता है डिकम्पोज होने में. तो इसीलिए हमें प्लास्टिक को, जैसे प्लास्टिक के पॉट यूज कर सकते हैं. यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल ornament or beautiful kind of a decorative things in your home by using the plastic. like प्लास्टिक की बोतल को यूज कर लिया, आप उसमें पेन होल्डर टाइप यू कैन मेक. तो इस तरह से आप प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में. और जब भी आपको भी डोंट लिटर एंड थ्रो अवे एनी गार्बेज इन द पब्लिक प्लेसेस, बिकॉज द गार्बेज और लिटर, जितना भी हमारा गार्बेजेस होता है, जितना वेस्ट मटेरियल होता है, हम जो थ्रो अवे कर देते हैं रोड में, तो इट क्रिएट अ वेरी हेल्थ प्रॉब्लम एंड सीरियस काइंड ऑफ अ डिजीज. सो डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. तो हम जब भी गार्बेज या कोई भी कूड़ा कचरा होता है, तो उसे हम ऐसे थ्रो अवे ना करें, उसके लिए प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को यूज करना चाहिए. और स्पेशली हम 3R टेक्निक को यूज कर सकते हैं, reuse, recycle and reduce. And be conscious, कस्टमर डू नॉट बाय प्रोडक्ट दैट इज ओवर पैकेज. तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट को पैकेज को खरीदते हैं, तो ओवर पैकेज नहीं होना चाहिए, मीन्स उसमें नंबर ऑफ लेयर नहीं होनी चाहिए पैकेजिंग की, बिकॉज इट क्रिएट अ मोर एंड मोर वेस्टेज. तो जितनी ज़्यादा पैकेजिंग होगी उतनी ज़्यादा वेस्टेज होगा. तो यू शुड हैव टू बी ट्राई टू यूज दो प्रोडक्ट विच आर मेड फ्रॉम द रिसाइकल मटेरियल एंड द ऑर्गेनिक ग्रोन. तो जो ऑर्गेनिक तरीके से बने मटेरियल होते हैं उन्हीं का यूज़ करें. तो अगर आप डिमांड इस तरह के प्रोडक्ट की करेंगे, तो कंपनी भी इस तरह के प्रोडक्ट को बनाएगी. तो इन ऑर्डर टू, in that manner we can organize our demand and we can also organize our waste in our environment. तो इस तरह से हमने प्रॉपर वे को हमने पढ़ा. तो दे आर द सम केस स्टडी आई हैव मेंशन. तो हिमाचल प्रदेश इज द वेरी फर्स्ट स्टेट जहाँ पर कि टोटली प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है. तो वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव विच बेसिकली टेकन बाय द हिमाचल गवर्नमेंट. Another, that is a Indian Oil Corporation and Department of Science and Technology है, are also established इंडिया फर्स्ट प्लान टू कन्वर्ट प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक इनटू द पेट्रोल डीजल. तो यहाँ पर इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट एंड साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने बहुत अच्छा स्टेप क्या लिया. जितने भी वेस्टेज प्लास्टिक्स होते हैं उनसे वो पेट्रोल एंड डीजल एंड एलपीजी को फॉर्म कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है. तो बेसिकली इट्स बेसिकली वेस्टेज से हम यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं. यूजफुल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? पेट्रोल एंड डीजल. तो दिस इज ऑल about today's session. Thank you, my dear student.